Hello everyone. Today we are starting our chapter first. That's name is computer hardware and software for 7th class. In this chapter we clear some topics and these topics are introduction about computer, hardware, what is the meaning of hardware, input devices, output devices, processing devices, storage devices, software, data system and troubleshooting tips. So there are many topics in this chapter which we clear out one by one. Hey children, I am computer. I have two components. Computer के two components होते हैं which are software and hardware. Let us study about both of these components and know that how they work together. इस चैप्टर में हम इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और ये जानेंगे दैट हाउ दे वर्क टुगेदर कि ये साथ में किस तरह से वर्क करते हैं. So firstly we read our first topic which is introduction about computer. Computer is an electronic machine. Computer एक electronic machine है. Computer is derived from the word compute which means to calculate. Computer जो है वो compute word से बना है which means to calculate जिसका मतलब होता है गणना करना because compute means गणना and to calculate means गणना करना and calculation. So basically computer is an electronic machine which works on power and it is derived from the word compute which means to calculate. We can see that in today's environment, computers are being used in almost every workplace such as banks, hospitals, educational institutes, malls, railways and even at homes. कंप्यूटर का जो यूज़ है मोस्ट ऑफ सभी वर्क प्लेसेस में किया जाता है लाइक बैंक्स, हॉस्पिटल्स, educational institutes, malls, railways and homes. So there are many uses of computer which we read one by one. So firstly we read the uses of computer in bank. Computer in banks, computer are used to maintain the account and transaction of the customer in the bank. That means कस्टमर्स के जो भी अकाउंट्स होते हैं उनके जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको मेंटेन करने का वर्क करता है कंप्यूटर. द नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल्स. इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर आर यूज टू मेकिंग बिल्स, keeping records of patients and medicines and also help doctors in the operation theatre. The next one is educational institutes like schools and colleges. There are many uses of computer in a school like making mark sheets, timetables, report card, creating and maintaining records of books in library. The next one is malls. In malls, maintain records. We use computer, watching and recording CCTV footage. And the next one is railway station. Computers are used for booking tickets and getting information about arrival from the trains. The next one is at home. At home we are use computer like playing games, listen music, drawings, painting pictures and watching movies. So there are various uses of computer and computers are being used in almost every workplaces. They are important as they increase our work efficiency and access information at a very high speed. कंप्यूटर्स जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज ये हमारे वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको बहुत ही फास्ट स्पीड में एक्सेस भी करते हैं. सो computers are very important because there are many uses of computer and it is access all the informations very high speed and store all the data and information and save our time. A computer has two main components that make it work. कंप्यूटर के टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिन पे कंप्यूटर वर्क करता है विच आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो देर आर टू मेन कंपोनेंट्स विच आर हार्डवेयर and software. Firstly we read computer hardware. Hardware comprises of physical units of a computer that can be seen and touched. Hardware जो होते हैं उसमें कंप्यूटर के उन फिजिकल्स यूनिट को कंप्राइज किया जाता है दैट कैन बी टच एंड सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. दैट मीन्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. वी कैन सी एंड टच ऑल द हार्डवेयर.
we can see and touch all the hardware parts. There are many hardware parts like keyboard, mouse, monitor, printer, speaker are visual outside the computer box, the CPU box, and some are invisibles, which are hard disk, CD drive and motherboard. That means some hardware parts are visible and some hardware parts are invisible. Computer hardware consists of these units. कंप्यूटर हार्डवेयर में कुछ यूनिट्स को कंसिस्ट किया जाता है, विच आर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. तो फर्स्टली वी रीड इनपुट डिवाइसेस. एज द नेम सजेस्टेड, इनपुट डिवाइसेस हेल्प अस टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस की हेल्प से कोई भी डाटा कंप्यूटर में हम एंटर कर सकते हैं. सो दैट मीन्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर थ्रू द कीबोर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जितने भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर में एंटर किए जा सकते हैं, विच वी आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. एज वी ऑल नो, कीबोर्ड एंड माउस आर द टू मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस. सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर, कीबोर्ड और माउस जो हैं वो बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज में आने वाले इनपुट डिवाइसेस होते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी इनपुट डिवाइसेस बट कीबोर्ड एंड माउस मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस. सम इनपुट डिवाइसेस लाइक स्कैनर, जॉयस्टिक, MICR, डिजिटल कैमरा, ड्राइंग टैबलेट, टच स्क्रीन एंड वेबकैम. So firstly we read scanner. It is used to scan photos, poster, text, magazines, etc. and feed them directly into the computer. स्कैनर का यूज़ हम करके किसी भी फ़ोटो, पोस्टर, टेक्स्ट और मैगजीन को स्कैन करवा सकते हैं एंड फीड दैम डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर, और उसे कंप्यूटर में डायरेक्टली फीड भी करवा सकते हैं. सो बेसिकली स्कैनर इज़ यूज टू स्कैन पिक्चर्स, पोस्टर्स, टेक्स्ट and magazines. Flatbed scanner and handheld scanner are commonly used scanner. फ्लैटबेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कैनर होते हैं. सो फर्स्टली वी रीड फ्लैटबेड स्कैनर. फ्लैटबेड स्कैनर हैज़ ए फ्लैट प्लेन ऑफ ग्लास ऑन विच वी प्लेस द आइटम टू बी स्कैंड. फ्लैटबेड स्कैनर जो होते हैं इसमें जो ग्लास होता है वो फ्लैट प्लेन होता है और विच वी प्लेस द आइटम टू बी स्कैन, जिसमें जो भी आप टेक्स्ट और जो भी पिक्चर्स आप उसको स्कैन करवाना चाहते हो इस प्लेन ग्लास पे रखी जाती है. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज फ्लैटबेड स्कैनर. नाउ द सेकेंड वन इज हैंडहेल्ड स्कैनर. हैंडहेल्ड स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द ऑब्जेक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी स्कैन. हैंडहेल्ड स्कैनर जो होते हैं इसमें जिस भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करना होता है हैंडहेल्ड स्कैनर उस ऑब्जेक्ट पर ड्रैग करके उसको ईजिली स्कैन करवा सकता है. लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन ईजिली होल्ड दिस स्कैनर इन योर हैंड. आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, अपने हैंड में होल्ड कर सकते हो. सो देर आर टू टाइप ऑफ स्कैनर विच आर फ्लैटबेड स्कैनर एंड हैंडहेल्ड स्कैनर. द नेक्स्ट वन इज MICR. The full form of MICR is Magnetic Ink Character Recognition. The full form of MICR is Magnetic Ink Character Recognition. Is an input device. ये एक input device होती है. It is used to identify and read magnetized character printed on a check etc. इसका जो यूज़ होता है चेक के नीचे मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर्स और कैरेक्टर को रीड करने और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज MICR. द नेक्स्ट वन इज डिजिटल कैमरा. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस. डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है. इट इज़ यूज टू टेक पिक्चर्स फ्रॉम द कैमरा. इस कैमरे का यूज़ करके हम पिक्चर्स ले सकते हैं एंड ट्रांसफ़र दैम टू द कंप्यूटर, और उसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अ मेमोरी कार्ड स्टोर्स द पिक्चर्स इन अ डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरे की जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो सभी मेमोरी कार्ड में स्टोर होती हैं एंड अ कार्ड रीडर इज़ यूज टू ट्रांसफ़र दैम टू अ कंप्यूटर. और इसमें कार्ड रीडर होता है जिसका यूज़ करके हम उन पिक्चर्स को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं.
So basically digital camera is used to take pictures and transfer them to the computer. The next one is drawing tablet. Look at this picture. This is drawing tablet. It is an input device. ये एक input device है which has a board and a special pen to write over it and is connected to a computer. इसमें एक स्पेशल विच हैज़ अ बोर्ड, इसमें एक बोर्ड होता है एंड स्पेशल पेन, और एक स्पेशल पेन होता है जिससे लिखा जाता है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, और यह कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है. द नेक्स्ट वन इज टच स्क्रीन. टच स्क्रीन, it is refers to a computer screen or other screen that we can use to input data by our fingertips. यह कंप्यूटर स्क्रीन और अदर स्क्रीन्स को रिफर्स करता है जिससे हम अपनी फिंगर्स को टिप करके इनपुट डाटा का यूज़ कर सकते हैं. टच स्क्रीन मोबाइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन. टच स्क्रीन मोबाइल्स जो होते हैं वो टच स्क्रीन के एग्जाम्पल्स होते हैं. एंड रिमेंबर, टच स्क्रीन इज़ वेरी सेंसिटिव. टच स्क्रीन जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होती है. यू शुड नॉट टच इट विद प्रेशर. आप उसे बहुत ही प्रेशर के साथ टच नहीं कर सकते हो. एंड वी कैन ईजिली ओपन एनी मेन्यू, एनी आइकन विच आर डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन बाय सिंपली टचिंग with our finger. The next one is webcam. A web camera is a video camera. वेब कैमरा जो होता है वो वीडियो कैमरा की तरह होता है, अटैच्ड टू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से अटैच्ड होता है. दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग ऑन द इंटरनेट. इसका यूज़ करके दिस इनपुट डिवाइस इज यूज्ड, इस इनपुट डिवाइस का जो यूज़ होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किया जाता है ऑन द इंटरनेट. सो देर आर मैनी इनपुट डिवाइसेस विच आर स्कैनर, MICR, digital camera, drawing tablet, touch screen and webcam. So our next topic is output devices. Output devices help us to access the desired output and information. Output devices जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको एक्सेस करने में काम आता है. दैट मीन्स इट डिस्प्ले अवर रिजल्ट, जो भी हमारा रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले करता है. मॉनिटर एंड स्पीकर आर टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस. मॉनिटर एंड स्पीकर कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर इज नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. द आउटपुट वी सी ऑन मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. जो हमें मॉनिटर पे आउटपुट दिखाई देता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. एंड स्पीकर वी लिसन टू म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. सो मॉनिटर और स्पीकर जो हैं वो टू कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं. एंड सम अदर यूजफुल आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर्स. Printers are used to take the output on a piece of paper from a computer. प्रिंटर का यूज़ कंप्यूटर से पेपर पर आउटपुट के लिए किया जाता है. There are 3 type of printer used nowadays. 3 तरह के प्रिंटर्स का यूज़ किया जा रहा है. And remember, printer, the output that we get on a paper, जो पेपर पर हमें आउटपुट मिलता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं. ओके. देर आर 3 टाइप ऑफ प्रिंटर. इसमें 3 टाइप के प्रिंटर बताए हुए हैं विच आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर. सो फर्स्टली वी रीड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. दिस प्रिंटर इज़ लेस एक्सपेंसिव बट वेरी नोजी. ये जो प्रिंटर होते हैं वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं और बट बहुत ज़्यादा शोर करते हैं. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन CPS. इन प्रिंटर्स की जो स्पीड होती है वो CPS, दैट मीन्स कैरेक्टर पर सेकंड में मेजर्ड की जाती है. दैट मीन्स पर सेकंड में एक ही कैरेक्टर इसमें प्रिंट होता है. एंड रिमेंबर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ऑल्सो नॉन एज इम्पैक्ट प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है एंड इट वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर. ये टाइपराइटर की तरह वर्क करता है. द नेक्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर. दिस प्रिंटर स्प्रेज स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट ड्राइंग इंक
to from letters and image. इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं, ये प्रिंटर इमेज और टेक्स्ट को बनाने के लिए फास्टली ड्राई होने वाली जो इंक होती है उसको स्मॉल स्ट्रीम्स में स्प्रे करता है. द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज मेजर्ड इन LPM. इस प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो LPM में मेजर्ड की जाती है. LPM दैट मीन्स लाइन पर मिनट एक लाइन ये प्रिंट करता है. एंड रिमेंबर, inkjet printer is also known as non-impact printer, and this printer is very expensive and consume more ink. तो ये बहुत ज़्यादा इंक का भी यूज़ करते हैं. The next one is laser printer. This printer uses laser technology to give the best quality output and is the most expensive printer. लेज़र प्रिंटर जो होते हैं ये प्रिंट करने में लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट देते हैं. लेज़र प्रिंटर इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर जो होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. द स्पीड ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन PPM दैट मीन्स पेज पर मिनट. लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो पेज पर मिनट में मेजर की जाती है. एंड लेज़र printer is very expensive and much faster than dot matrix printer and inkjet printer. दोनों से क्या होते हैं, फास्ट होते हैं. So there are 3 type of printers which are dot matrix printer, inkjet printer and laser printer. Look at these pictures. There are dot matrix printer, inkjet printer and laser printer. Dot matrix printer are less expensive, which measured in CPS that means character per second. Inkjet printer are expensive, which measured in LPM that means line per minute. And laser printer are very expensive, which measured speed in PPM that means page per minute.